Hi everyone, good evening. Good evening. Okay. So I hope everybody is fine and ନିଜ ନିଜର mains preparation continue କରୁଛ and content improvement, structural improvement ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛ. Okay. Prelims ର result ତମର ନଭେମ୍ବର first week ଭିତରେ expected ଅଛି. Okay. So without wasting time and ଆଉ ସେ କଟଅଫ୍ ର discussion ରେ ନ ରହିକି ଏବେ preparation full dome ରେ start କର ବୋଲି ମୋର ଆଶା ତମମାନଙ୍କଠୁ. ଓକେ ତ ଠିକ ଅଛି. ତ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ discussion ଥିଲା discussion regarding the test 2, right? test 2 regarding ଆମର discussion ଆଜି and I hope କି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଛ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବନି ଯଦି ଡିସ୍କସନ କ୍ଲାସରେ ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ହେଲା. ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଲେଖୁଛ ମାନେ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍. ଓକେ, ୱିଲ୍ discuss a lot of things. Okay, so let me show you some of the copies of toppers. ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କପି ଖାଲି ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଣେ ଟପରଙ୍କର କପି ହେଲା. ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର ଯେତେବେଳେ question, whenever you are getting the question, your first and foremost thing is to identify the different parts of the question. ତମେ ଯଦି ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହବ ହେଲା. ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ତମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନା ଓକେ. ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ you need to identify the question, identify the question କି ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡା କଣ କଣ ଅଛି ହେଲା. ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଥିଲା ସେଥିରେ କଣ କଣ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା what is the doctrine of basic structure. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ କଣ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ପଡିବ, ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା. ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଉ କଣ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ପଡିବ, how recent constitutional changes have raised debates between parliament's power to amend the constitution versus supreme court's power of judicial review. तो जो judicial review ଆଉ amendment power parliament ର ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ conflict ଚାଲେ, ତ recently ଯୋଉ constitutional changes ଗୁଡା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ conflict ଟା ବେଶୀ ବଢି ଯାଇଛି. ତ ସେ ସବୁକୁ କିଛି constitutional changes ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ଯୋଉଟା କି recent 5-10 years ଭିତରେ ହେଇଛି, ଯୋଉଥି ଯୋଗୁରୁ ଏଇ debate ଟା ଅଧିକା ହଉଛି. So you need to, second part ହଉଛି you need to mention about the recent constitutional changes ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଗୁରୁ criticism raise ହେଇଛି. ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କରିବ. ଥର୍ଡ ଜିନିଷ suggest ways to resolve this issue. ତିନିଟା ଜିନିଷ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଚାରିଛି, 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ତ ଏକ୍ସାମିନର ଯିଏ ବି ତମ କପି ଦେଖିବେ ବା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲି କପି ବା ଯୋଉଠି ବି ତମର ଓପିଏସସି ରେ କପି ଦେଖିବେ, ସେ ଦେଖିବେ have you answered these three parts or not. ତିନିଟା ଆଗ ପାର୍ଟ ତମେ ଆନ୍ସର କରିଛ ନା କରିନା, ବୁଝିଗଲା. ଏଇଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ. ତ ବହୁତ ପିଲା କଣ କରିଛ, ଆନ୍ସର କରିଛ ବଟ୍ ୱେ ୱାର୍ଡ ମାନେ ଆନ୍ସର କରିଛ, ଠିକ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଟ୍ କରିନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ତମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛ. ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା we need to identify the question, the different parts of the question. ଏଇଟା କରିଦେଲେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର. ଆନ୍ସର କରିବା ୟା ପରେ it becomes very easy, ବୁଝିହେଲା. ସୋ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ,
सेकेंड जिनस होला जेमती आमे कहिले जोटा तमरा फास्ट टर्म टा रहउची, सो यू नीड टू पुट दैट इन योर इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन पाई कि गोटे जिनस माइंड रे रखि दियो, इंट्रोडक्शन केबे हेले भी 4-5 लाइन मैक्सिमम, 4 to 5 लाइन्स मैक्सिमम, ताठू अधिका हेले इंट्रोडक्शन नुहे। ओके, इंट्रोडक्शन कौन होबो ना, इंट्रोडक्शन को यू नीड टू कौन, हाँ, इंट्रोडक्शन को तुमको गोटे सेकेंड, गोटे सैंपल कॉपी मु देखुଥିଲି। हम्म, हम्म, तमे समस्त हाँ ये भाया कॉपी लिखुच, एंड जो मैंने भी लिखुन आई वुड रिक्वेस्ट कि ये कॉपी लिखा स्टार्ट करो, कारण एटा ओपीएससी रो एबे नुआ रिसेंटली ये भाया कॉपी हो जाइए, जो तुमरो प्लेन पेपर रोची ऊपर एंड लेफ्ट साइड राइट साइड सब रोची, बुझिला। तो जेतेबेले तुम इंट्रोडक्शन लिखुच, इंट्रोडक्शन धर एठू आंसर तुम कल ना, एठू अधिका इंट्रोडक्शन जेंति क्रॉस न करे, तुम जहाँ भी इंट्रोडक्शन दियो एटा माइंड रे फिक्स कर दियो, कारण इंट्रोडक्शन भी गोटे एग्जामिनर रो माइंड रे क्रिएट हो जाए बहुत अधिका लिखुची। ओके, गोटे बैड इंप्रेशन क्रिएट हबो, बा टू द पॉइंट लिखुन बोली जना पड़ियो। जेमति हमर क्वेश्चन रे देछि बेसिक स्ट्रक्चर कोन, तो बहुत पिला तार इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर को जजमेंट 5टा 6टा जजमेंट देई कि बेसिक स्ट्रक्चर केमिति केमिति इवॉल्व हैला, ऑल दिस थिंग्स यू हैव रिटन। ए यार किछि आवश्यकता नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर हमके आंसर कोन करियार अछि, बेसिक स्ट्रक्चर रो मीनिंग कोन, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बुझेला। गोटे तमे जो गोलकनाथ बा जो भी सॉरी केशवानंद भारती जो क्वेश्चन रही सेठू बेसिक स्ट्रक्चर आसला। मेन जिनस जोटा सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश कले जे पार्लियामेंट जहाँ भी आमेंड करिपरिबो, बट विदाउट ओवरहॉलिंग और विदाउट डिसरप्टिंग द very fundamental structures of the constitution, and that is called as basic structure. And what are the features of basic structure? तो गोटे सिंपल जिनस तुम एमती करदब जे तुम कौन कल ना एठू ए जाए लिखिल बेसिक स्ट्रक्चर को माने स्टार्ट कर तुम जे कौन जे इन केशवानंदा भारती केस लिखिल है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कल, देन यू नीड टू राइट की एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को तुम टिके एठी गोटे एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर करिकी ओके एतिकी करदेले एग्जामिनर को विल इजीली अंडरस्टैंड कि तुम प्रॉपर्ली क्वेश्चन बुझिछ एंड आइडेंटिफाई कर। या छड़ा थर्ड जिनस किछि भी तुम इंट्रोडक्शन में रहिबा उचित नुहे। बहुत पिला बहुत अधिक अधिक इंट्रोडक्शन लिखिछ, तार किछि मीनिंग नाही, एतरे कले कोन तमरो ठीक अछि तुम जानिछ दैट इज वेरी गुड, बट तार किछि यूटिलाइजेशन नाही, एग्जामिनर विल नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय दिस थिंग्स, बुझिला। सो आमर जो फास्ट क्वेश्चन अछि, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन कोन जे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट कहिले जे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रे जे पार्लियामेंट रो किछि कोन फंडामेंटल डायरेक्टिव्स अच्छी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स अच्छी which cannot be disrupted of the constitution, a parliament cannot disrupt it, and that is called basic structure। एतिकी जिनस आंसर कल लिखिल, एंड ये जो एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी माने जो गुड़िक बेसिक स्ट्रक्चर अंडर जाउची वेरियस जजमेंट थ्रू रे बुझा है ताको कोन करिवो तमे गोटिए छोटिया डायग्राम करिकि ताको एक्सप्लेन कर देलो कि मैं एमिति लिखि परिवो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये 1 2 3 4 एमती एमती भी करि परिवो, बुझिला। जड़े दिजण बहुत ही भल डायग्राम कर बहुत ही भल रिप्रेजेंटेशन कर किसी पिला रिप्रेजेंट चंदन चंदन अच्छा जदि कहि चंदन दिगल जड़े ओके तांकर मैं कॉपी देखुली बहुत ही बहुत एक्सट्रीमली शॉर्टली लिखिच, आउ जड़े जड़े अच्छ टिके एक्सट्रीमली अधिका लिखि
काजल अछंती जणे काजल टिके तमे अधिका लिखि दउछ स्वागतिका अछंती तमे भी स्वागतिका बहुत अधिका लिखुछ ओके हम तुम मान कॉपी रे भी मेंशन करिछि जो माने जहा जहा तमरो इश्यूज रहिछि मु ताको मेंशन करिछि ओके हां म एठी आउट जिंस भी मेंशन करिवि जे एटा मु जनक कॉपी रो नेछि बुझिला जस्ट तुमको बुझेया पई कि जे हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स देखो तुम कौन लिखिल गोटे जगार लिखिछ हाँ आई थिंक एटा कोड गोटे लिखिछ तमे बेसिक स्ट्रक्चर रे कि को गोटे क्वेश्चन रे लिखिछ सजेशंस टू रिजॉल्व इश्यूज एटा की लिखिछ कहि परिबो जदि प्रेजेंट अछ तो को क्वेश्चन रे लिखिछ आई एम फॉरगेटिंग द क्वेश्चन suggestions to resolve the issues ठीक अछि तमे कोन लिखिछ ना preserve constitutional morality should be the prime goal that's why create statutory committee for mitigation तो ये जो तमे चारि लाइन रे लिखिछ ताकू तमे कोन करि परिबो within one line लिखिबो adhering to constitutional morality तमे ए चारि लाइन नो मीनिंग टा एठी आसी जाउची तुमको पूरा जिंस लिखिया कोन से आवश्यकता नाही बुझियला तापर आ गोटे देखो लिखिछ कोन क्लियर एंड डिफाइंड प्रोटोकॉल्स पुनी स्लैश देकी लिखिछ रूल्स शुड बी रिटन जुडिशियल इंटरवेंशन इन लेजिस्लेटिव मैटर कैन बी बैलेंस्ड एटा लिखिछ एटा बोते से बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन देखो मु सेही जिंसटा को शॉर्टली गोटे लाइन लिखिछ कोन वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू जुडिशियल इंटरवेंशन इन लेजिस्लेटिव मैटर्स बुझिया तो तमे जहाँ भी लिखुछ ना डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग और डू नॉट एलाबोरेट अ लॉट ऑफ थिंग्स अन्य माने भी रिलेट करि परथो त माने कोठी भूल करूछ बुझी परछ तो एई जो टॉपर्स मानक कॉपी एटा जने टॉपर्स कर कॉपी गोटे देखुची एटा भी आ जने टॉपर्स कर कॉपी हला टॉपर कर जाओ तमे तांकर भी आंसर देखिबो सब बहुत अधिक एलाबोरेशन किछि नाही तमे देखो मु कोन कहली जेते बेले भी तमरो इंट्रोडक्शन हो ना इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी बियॉन्ड 3-4 लाइंस देखो इंट्रोडक्शन एटी कोन अछि छाड़ एटी इंट्रोडक्शन कोन अछि देखो फूड सिक्योरिटी विषय रे क्वेश्चन अछि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी एग्जामाइन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ दिस डायमेंशंस तो क्लियरली एटा को जे भी जने बेसिक पिला जानि परिबो जे नाही आंसर पचराइछि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी तो आमे जेमति एटी कहिली तमे जे आंसर करिवो एई तक भितरे फूड सिक्योरिटी रहया दरकार फूड सिक्योरिटी रो मीनिंग कोन एत्ति की भितरे बस दैट्स इट तापरे कोन करलो सी कोन करछंती फूड सिक्योरिटी विषय बा डायमेंशन तार गोटे से बनै दैछन बस एत्ति की होछ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ने याटू अधिका किछि भी रहइबोनी अब बुझियला तापरे देखो तापरे जो क्वेश्चन अछि जो नेक्स्ट पार्ट अछि जे एग्जामाइन इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी माने एग्जामाइन इंडिया स्टेटस माने कोन पचराइछि माने यू नीड टू एक्सप्लेन कि इज देयर एवरीथिंग गोइंग वेल और किछि चैलेंजेस रहिछि एवरीवन नोस कि किछि चैलेंजेस रहिछि किछि भलो जिंस होउछि वे फॉरवर्ड तो देखो चैलेंजेस रे से केमिति लिखछन आंसर स्ट्रॉन्ग सरप्लस एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स सॉरी एटा जो चैलेंजेस टा जीएचआई रैंकिंग 107 आउट ऑफ 121 जीएचआई रैंकिंग 107 आउट ऑफ 121 तमे जे जदी आंसर लिखि थांदा तमे कोन लिखि थांदो इंडिया इज रैंक्ड 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज इट मींस फूड सिक्योरिटी रे प्रॉब्लम अछि से कोन देखिले ग्लोबल हंगर इंडेक्स टा को भी से खाली जीएचआई लिखि चंती जीएचआई रैंकिंग 107 आउट ऑफ 121 एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू portray here बुझिला तापर देखो नेक्स्ट चैलेंज कोन लिखछन देखो प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग वेस्टिंग एनीमिया खाली परसेंटेज गुडा को देखो इठी खाली तीर मारी के लिखछन नहीं होनी ओके जस्ट अ व्हाइल देखो से कोन करछंती प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग वेस्टिंग एंड एनीमिया जस्ट गोटे गोटे वर्ड्स you need to find these words which will explain your point सेतरे आउ तुमको जेमते एक्स्ट्रा किछि पुट न करिया को पड़े एटा देखो एटा स्वागतिका को कॉपी मु जो जिंसटा कहउतली स्वागतिका देखो तमे निजे केते बडो इंट्रोडक्शन तमे लिखिछ
किछि जिंस भल लिखिछ बट देखो आई यू गेटिंग इट सो हमको ये जिंस अवॉइड करिया पड़िबो बुझी पारछ तो देखो एठी जो लिखिछ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन करिछ चारि चारि लाइन एक्सप्लेनेशन चारि चारि लाइन एक्सप्लेनेशन केबे भी तमे कंप्लीट करि परिबोनी पेपर लेट मी टेल यू वन थिंग केबे भी सब जगह मु लिखिछ शॉर्टन योर पॉइंट्स यू नीड टू देखो कोन लिखिछ कोन लिखिछ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ensuring the legislature executive and judiciary function within their constitutional limits and acts as checks and balance on one another এটা যেটা essay লিখিব না you need to write these kind of statements ओके बट एठी तमे लिखुछ एउडा किछि लिखिया दरकार नहीं केवल लिखिबो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर acts as checks and balance on legislative executive and judiciary बुझे एतिकी रे तम स्टेटमेंट क्लियर होबा दरकार बुझियला तो सो हमको ये सब जिंस ऊपर क्लैरिटी आसिया निहांती दरकार नहल नै हमर पेपर केबे हेले भी कंप्लीट होबो नाही ओके सो एटा जस्ट मु कहली आउ जने मते कहउतिले कहले सर मु एई क्वेश्चन टा जानिनी तो मु एटा स्किप कर देली आंसर कलिनी देखो एटा भी गोटे बहुत बड़ क्राइम डेफिनेटली एग्जाम रे किछि क्वेश्चंस पडिबो जोटा को तुम आसीबोनी एठी तमरो जो बुद्धिमत्ताटा काम करिवो जे तुमको जेत्तिकी भी आसुची यू आंसर इट इवन इफ चारि लाइन भी जणा अछि तुमको माने फॉर एग्जांपल से कहउतिले स्पेसिफिकली आदि कर्मयोगीटा ताऊ जणा नै कोडा आदि कर्मयोगी हे देखो आदि कर्मयोगी अभियानटा ताऊ जणा नै ओके आउ बेसिक तमे जानो इंक्लूसिव गवर्नेंस तो लिखि परिबो आदि कर्मयोगीटा ट्राइबल रिलेटेड अछि तो ट्राइबल लीडर जो हमरो ये माननको ब्यूरोक्रेट्स मानो केमिति तांकर कैपेसिटी बिल्डिंग करिकी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करा ए विषय क्वेश्चन टी अछि एनीथिंग यू नो से कहले एटा भी मु सर एट क्वेश्चन टा भी आसलेन तो छाड़ देछन जो स्पीकर देखो स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्लेज अ क्रुशियल रोल तो क्वेश्चन अछि जे यूके और इंडिया रो स्पीकर कर रोल को कंपेयर करो आंसर करो ठीक अछि तमे यूके और इंडिया रो रोल स्पीकर को करि परलनी बट एतिकी तो जानिछ व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर इन इंडिया तीन चारटा पॉइंट तो लिखि परिबो जदि तीन चारटा पॉइंट लिखि थांतो 2 रु 3 मार्क तुमको मिलि थांता तो तमर जदि 60 65 जहां भी स्कोर अछि यू वुड हैव गॉटन 3 मार्क्स मोर 3 मार्क्स मोर माने एग्जाम रे 6 टा 7 टा रैंक ऊपर बुझिला सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीस थिंग्स आसु न आसु वी नीड टू पुट इट किछि भी हो ओके तो हां हम जिबा सो कोन थिला क्वेश्चन कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कोन एंड कोन कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बा चेंजेस हेछि जोडा जोगुरु क्रिटिसिज्म आसुछि तो फर्स्ट सेंस यू नीड टू एक्सप्लेन मु जेमति कहली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कोटू इवॉल्व हैला एंड तार मीनिंग कोन आ तार कोर एलिमेंट्स कोन ओके विद इन अ डायग्राम यू नीड टू पुट इट बुझिला तापरे सेकंड पार्ट को आंसर करिबा हाउ रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैव रेज्ड डिबेट्स तुमको सेटा पूरा हेडिंग दबाकू पड़िबो प्रॉपर बहुत पिला कहछ हेडिंग जणा ही पडुनी चंदन हेडिंग जणा पडुनी आउ जणा अछंती तका नाडा मन पडुनी हेडिंग तांगर जणा पडुनी बुझला हेडिंग तमरा गोटे पार्ट एई पार्ट रु हम एई पार्ट को शिफ्ट करिबा सेई समय रे हेडिंग इज द वन व्हिच विल डिफरेंशिएट कि या भीतर आ या भीतर कोन डिफरेंस अछि यदि हेडिंग दबनी बा सेई लाइन नै लिखि दबो ताहाले केमती जणा पड़िबो केही भी तमर आंसर एते डिटेल ले पढिबे नाही एग्जामिनर विल लुक कि बेसिक जिनसोडा तारा एड्रेस हेछि कि नै तो you need to mention recent constitutional changes and emerging debates or recent constitutional changes causing conflict एत लिखिलो ताको हेडिंग को प्रॉपर बॉक्स बनेलो तापरे तमे आसीओ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला 2019 ने जोथरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गला बुझिया तो बहुत सारा डिबेट से समय आसिला जे इक्वालिटी और सोशल जस्टिस प्रिंसिपल आमर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आर्टिकल 14 रे राइट टू इक्वालिटी ओके तो से समय आसीतिला जे पार्लियामेंट कोन ए जो राइट टू इक्वालिटी जोटा आर्टिकल 14 अछि सेटा तो गोटे बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट फंडामेंटल राइट सो पार्लियामेंट ताऊ केमती वायलेट कला से समय क्वेश्चन आस्तिला रेज एतला डिबेट तो सेटा तमे पुट कलो ओके तो तापर आउ किछि अमेंडमेंट चेंज आछि 105th अमेंडमेंट 102nd एंड 105th अमेंडमेंट आसिला
जो थे कि स्टेट्स एंड सेंटर रो पावर टू आइडेंटिफाई एससीबीसी सोशल एजुकेशन एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कर पावर को दिगला जे स्टेट भी बाछि पारिबो सेंटर भी बाछि पारिबो सो एथेरे फेडरल बैलेंस रो क्वेश्चन आसिला फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो यू नीड टू पुट इट अच्छा आ गोटे जिंस हम कहली एग्जांपल जेते बेले दउछो एमती खाली एग्जांपल एमिति लेखनी ओके एमती लिखि परिबो एग्जांपल लिखिलो गोटे गोल टे करि परिबो बा एग्जांपल लिखिलो एमती गोटे करि परिबो देखो जनकर जन टॉपर कर तुम कॉपी देखौछि से केमती एग्जांपल गुडा से लिखिछन देखो करू ए देखो ओके देखो तुम कॉपी रु पूरा देखो ये खाली एग्जांपल देखते मे भी तुम आखिर एग्जांपल पड़ी न था बट सी कौन कर एग्जांपल टाको भी हाईलाइट कर बुझीपार ये देख ओके गोल्ड कर कि पिला एमती भी करती है तो जो भी गोटे वे आपण जिते भी एग्जांपल दौथुव कौन कर यू नो मेक इट अ बिट हाइलाइटेड देख प्रति एग्जांपल जगह से कौन कर लिखा बुझे तो तुम्हें भी यहाँ आपणे पार कॉपी रु ओके देख बुझे जोठी जोठी सी एत प्राक्ट कर जोठी भी पाई से एग्जांपल लिखिं एग्जांपल से भाई भाव लिखिं बुझेगा सो आमको भी सेमती एग्जांपल लिखा प्राक्ट करवा उचित बुझेगा तापर आ गोटे 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 रे जोठी एंडेड द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लेजिस्लेचर सो क्रिटिक्स क्वेश्चन वेदर सच अमेंडमेंट्स वीकेंस इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक इथोस तो आमे किछि लोगों को अलाउ कले नाही तो एथरे तांकर जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हैम्पर हेतला सो दैट आल्सो रेज मेनी क्वेश्चंस बुझिला एंड सब टू फेमस हेतला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो थरे कि जोटा कि हमरो बना हेतला जे जुडिशियरी जो भी बना जीवो बा कौन माने जो चीफ जस्टिस एका सिलेक्शन इलेक्ट करा जीवो सेतरे सब एई कमीशन टी बनेबो बुझिला तो एटा को मध्य सुप्रीम कोर्ट कौन कले स्ट्रक डाउन कर दिले सो इट रेज्ड कंसर्न्स ऑफ जुडिशियल ओवररीच एंड पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी जुडिशियल ओवररीच वर्सेस पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी बुझे so so what are these debates regarding the parliament and judiciary power रे देखिया गले पार्लियामेंट रो व्यू होची पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स पार्लियामेंट वाला कौन कहते जे आमे वी रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल एंड आम पाखे पावर रहा दरकार आमेंड करने जुडिशियरी से कहते जे वी आर सेफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम मेजोरिटेरियन एक्सेस डेमोक्रेटिक मैंडेट कौन अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर विल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जुडिशियरी व्यू होची we have the power of judicial review to ensure the constitutional morality and rule of law separation of power judicial activism parliament कहूची judicial activism माने judiciary जो ता आडू आसिला ताले it will intrude into legislative domain violate करिवो and judiciary कौन कहूची जे we need to have this judicial activism रो गोटे example कौन कहि परिवो famous example जोठी जुडिशियरी निज आडू ये करे पीआईएल नो पीआईएल जने भी किए पीआईएल फाइल कले सुप्रीम कोर्ट कौन करिवे ना नोटिस करि परिबे बुझिला तो एटा भी मेंशन करिवो तमे आंसर रे ओके जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अछि पीआईएल द्वारा मध्य ओके तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म ओके ओके देन आमर लास्ट पार्ट अच्छी क्वेश्चन नो हाउ टू रिजॉल्व दिस इश्यूज तो रिजॉल्व दिस इश्यूज रे कोन अछि ना इंस्टीट्यूशनल डायलॉग एंड कोऑपरेशन बनेबा ओके ए पार्टटा न लिखिले भी किसी आवश्यकता ना इंस्टीट्यूशनल डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन और रिव्यू कमिटी परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 सेटा गोटे बनाइतिला आमे ताकू मध्ये रेफर करि परिबा कोनोसी अमेंडमेंट हेले तापरे जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड पार्लियामेंटरी प्रुडेंस
माने both institutions must exercise self restraint by avoiding politically motivated amendments and judiciary by not entering the policy domain unnecessarily. तो तुम यही पॉइंट लिखी देले एटा एक्सप्लेन ही गला तापरे पब्लिक कंसल्टेशन एंड ट्रांसपेरेंसी माने इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविक माने ये वॉइस बा सिविक पार्टिसिपेशन को हमें ये करेगा जेमती एग्जांपल तुम एटी दे परियो कोन ना लॉ कमिशन तो 22nd लॉ कमिशन भी अच्छी तो लॉ कमिशन कोन ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करया पई कि पब्लिक रो परसेप्शन बा पब्लिक रो मतामत ग्रहण करूछंती सेटा लिखि परिबो बुझिल एंड फाइनली strengthening the constitutional morality बुझिला तो सो एटी तुमको कोन कोन जानुचो जे तुमको एटी आ सब हेडिंग्स दबार नाही आर यू गेटिंग माय पॉइंट सब हेडिंग्स दबार नाही डायरेक्टली लिखो पॉइंट टाको जे देखो एटी धर प्रॉब्लम्स अछि तो एटी प्रॉब्लम्स रे से जो पांचटा देखो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द प्रॉब्लम्स वेरी इनोवेटिव वे तो प्रॉब्लम्स को देखो एटी सब हेडिंग्स देखुचो कि सब हेडिंग्स देखुनो से एटी लिखिचंती लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी अमंग फार्मर्स एति कि लिखिचंती तो सी कौन करिसेंती जोटा इंपोर्टेंट पार्ट अछि बा जोटा को सब हेडिंग्स देई थांतो ताकू सी हाईलाइट कर देइचंती एटी कोन गोटे पॉइंट माने ता तळे गोटे गार दी हाईलाइट कर दे सेम जिंस यू कैन डू इट आल्सो ओके हमर धरो तुमको एटी लिखियार अछि ना ए पॉइंट लिखिया अछि तुम लिखिबो स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू रिड्यूस कॉन्फ्रंटेशन ए गोटे लाइन लिखिला हैला ताकू कोन करिवो ना खाली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टाकू अंडरलाइन कर दो पूरा ए दी लाइन लिखिया किछ आवश्यक नाही बा थरे एटा को लिखि पुन ता तळे पुन एक्सप्लेन करिवा आवश्यकता नाही किए ए बळा लेखुछ जने मु देखिछि हु इज राइटिंग लाइक दिस हैंड रेस कर परिबो कि माने किछि लाजो करे नै किए लेखुछ एमती जणे कि लेखुछ आई एम श्योर जणे नो दि तीन जण एमती लेखुछ ओके छाड़ो पछरे देखिबा बट यस सो यू नीड टू राइट दिस इन दिस वे बुझेला तो जानी पारलो समस्त जो माने प्रॉब्लम रहउची आंसर लिखिबारे व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर एबे स्ट्रक्चर ऊपर काम करियो को हमहु पडियो तापरे तमे कंक्लूजन लिखिबो जे द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ India's constitutional democracy ensuring that no transient majority can alter its foundational principles बस that's it this should be the conclusion तापर क्वेश्चन देखो recent debates over the independence of election commission of India highlights the challenges of maintaining separation of power in a vibrant democracy critically examine the significance of separation of power in safeguarding democratic institutions with special reference to election commission of India तो क्वेश्चन एटी आगो हमको आइडेंटिफाई करिया पड़ियो कोन कोन अछि क्वेश्चन फर्स्ट जिंस कोन ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो अछि क्वेश्चन टी ताको हमको इंट्रोड्यूस करिया पड़ियो बुझियला तो सो फर्स्ट पार्ट हमें पाई गले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ताको हम इंट्रोडक्शन रे बुझेबे सेकंड जिंस सेपरेशन ऑफ पावर ओके सेकंड जिंस इंट्रोडक्शन रे कोन रहइबो सेपरेशन ऑफ पावर तापरे मेन क्वेश्चन आसुची significance of separation of power with special reference to ECI माने से क्वेश्चन पचारुची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को जतला हमें देखुचे आउ सेपरेशन ऑफ पावर को जतला हमें देखुचे तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव रो पार्ट ना लेजिस्लेटिव रो पार्ट कहलो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो हमर तीनटा ऑर्गन अछि ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी इलेक्शन कमिशन ऑफ एटा कहार पार्ट एग्जीक्यूटिव रो पावर तो आमे जेतेबेले सेपरेशन ऑफ पावर कथा कहूचे आमे बेसिकली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय कोन कहूचे आमे कहूचे एग्जीक्यूटिव आ लेजिस्लेचर भितरे तो सेपरेशन ऑफ पावर दरकार सेटा केमिति इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया वायोलेट करूची बा केमिति लेजिस्लेटिव रो इन्वॉल्वमेंट बा इंटरफियरेंस
इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया रे रहउची सेटा को हमको क्वेश्चन में पुट करियो पड़िबो। तो फर्स्ट तमे you need to explain the constitutional ये कौन पोजीशन ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कौन ता काम कौन तमे लिखियो। ओके तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल ले फॉलो करूची को Sir, Article 324. ओके गुड तो तमे लिखिलो मेंशन करिवो तमरो एथरे कोथरे इंट्रोडक्शन रे जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया is mentioned in the article 324 of the constitution. Okay, and it is the apex body to conduct elections in Indian democracy. बस एतिक होची तमरा इंट्रोडक्शन याठो अधिया किछ इंट्रोडक्शन रहबनी। फर्दर अनदर थिंग यू नीड टू पुट इन इंट्रोडक्शन दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर माने तमे कोन ए दीटा जिंस तमरा इंट्रोडक्शन रे रहिबो बुझियल तो या छडाओ किछ रहबनी। देन यू कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर काहे की अछि तीन चारटा पॉइंट लिखिबो। टू प्रिवेंट द टायरानी एंड आर्बिट्ररी रूल बस एतिकी आंसर रे तमे तले आंसर लिखुछ ना टू प्रिवेंट टायरानी एंड आर्बिट्ररी रूल और गोटे लाइन लिखि परिबो बाय एंड प्रिवेंट डिक्टेटरशिप दैट्स इट। टू प्रमोट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन इंडिया's गवर्नेंस और टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। थर्ड जिंस टू प्रमोट एफिशिएंसी and specialization so that every organ works in its specific sphere. And finally to protect or promote individual liberty. ओके कारण समस्त को जदि आमे सेपरेशन ऑफ पावर न रहिबो ताले कोन हो फंडामेंटल राइट वायलेट हबो आउ से माने परस्पर रो लाइन को क्रॉस करिवे। ए जो आमे एते एक्सप्लेन कराई छी त आंसर रे बस गोटे गोटे लाइन रे रहला बुझियला। तापर हमको आसीबो मेन जिंस जे जो क्रिटिकल एग्जामाइन देछि क्रिटिकल एग्जामाइन माने यू नीड टू एक्सप्लेन द इश्यूज। इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया को काहे को आउछि जे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फील हो नाही बा इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया रो इंडिपेंडेंस एंश्योर हे पारु नाही से ता स्पीयर रे रही काम करि पारु नाही सेतिरे लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस रहउछि। वाई फास्ट जिनस होची तार अपॉइंटमेंट जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को जी अपॉइंट करंती तो जो गोटे एक्ट हेछि एबे 2023 रे इलेक्शन कमिशन एंड चीफ इलेक्शन कमिशन एंड इलेक्शन कमिशन अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 जो थरे की जो बॉडीटा थिला लीडर ऑफ ऑपोजिशन थिले प्राइम मिनिस्टर थिले एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले। वर्तमान कोन कराई छी ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटेई की जने कैबिनेट मिनिस्टर को निया जाई छी बुझा। बट तमे तो आंसर करियो डोंट राइट एवरीथिंग। आंसर कोन लिखा हो अपॉइंटमेंट प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस लिखा है ना। ओके तो सिंपली लिखिबो जे कोन लेजिस्लेटिव कोन लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस इन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट बस एतिकी लिखि परियो। एग्जांपल कोन अपॉइंटमेंट कमिटी इन्वॉल्व्स टू कैबिनेट मिनिस्टर्स और टू सेंट्रल गवर्नमेंट कोन ये लेजिस्लेचर्स बुझला जो तरे कोन लेजिस्लेटिव मानकर बा लेजिस्लेचर रो इन्वॉल्वमेंट बेसी रहला तो व्हिच इज अंडरमाइनिंग द एग्जीक्यूटिव स्फीयर। तापर मैनिपुलेशन ऑफ वोटर रोल्स एंड इलेक्टोरल डाटा माने बे रिसेंटली कोन होई जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चली छी चारियाडे
तो दिल्ली रे भी हैला तमरो बिहार रे भी एबे चलीची सो देयर हैज बीन एलिगेशंस ओवर मैनिपुलेशन ऑफ voter rules and electoral data through special intensive revision बस गोटे पॉइंट सरला तापर lack of financial और administrative autonomy तो जो इलेक्शन कमिशन ପାଇଁ जो पैसा दरकार ता ପାଇଁ जो से काम करिया ପାଇଁ कि ओके दैट इज माने सीएजी माने तार जो हमर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो न जाई कि ओके एटा एग्जीक्यूटिव ऊपर डिपेंड करे निजर स्टाफ फंड्स माने माने लेजिस्लेचर ऊपर डिपेंड करे निजर स्टाफ्स ପାଇଁ फंड ପାଇଁ which can obviously undermine its independence जे तुम पैसा जणे दबो तो तुम ता हिसाब काम करियो तुमको अपॉइंटमेंट भी सीए करिवो तार पैसा भी सीए तुमको दबो तारे तुम न्याचुराली तुम ऑटोनॉमी आसिलानी बुझिला तो so it does not enjoy the expenditure status like judiciary or CAG बुझिला जहार फिक्स थाए इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस फिक्स थाए ताकर तापर सिलेक्शन ए सिलेक्टिव एनफोर्समेंट एंड परसेप्शन बायस ओके तो बहुत जगह रे होची ना ऑपोजिशन पार्टीज एलिज दैट बहुत जगह कौन हुए देखिबो जने ऑपोजिशन लीडर किछि भी गोटे कहि देथिबे प्राइम मिनिस्टर विषय रे ही और शी विल बी नोटिस्ड आ जदि एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर बा अदर्स रूलिंग पार्टी रो की कहिथिबे तांको एते इलेक्शन कमिशन नोटिस फोटिस किछि करंतिनी तो एटा होची कोन सिलेक्टिव एनफोर्समेंट ता कोन बुझियला तो तापर इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल एंड ट्रांसपेरेंसी चैलेंजेस बुझिला तो हमर जो सीसीटीवी फुटेज माने तुम सरीगला इलेक्शन सरीगला किसी समय पर सीसीटीवी फुटेज और रखुनी डेटा मैनिपुलेशन होची ओके डिजिटल मिस इनफॉरमेशन जो क्रिएट करा होची डीप फेक थ्रू रे एउडा विषय रे तो या विषय भी इलेक्शन कमिशन एते किछि काम करि लास्ट 2024 इलेक्शन रे ए जो एआई रो केते यूज हेतिला हैला सबुठ बड़ तुम एग्जांपल देखो राहुल गांधी जो आसुची इस तरफ से आलू निकालो कौन आलू डालो उस तरफ से सोना निकालो जोड़ा शुणिच कि ना एटा पर एटा एक्चुअली तांकर ये स्पीच नुहे माने सीए से स्पीच ता देई नांती बुझिला से स्पीच टा को मैनिपुलेट करा जाईची बुझिला तो एई विषय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एते विजिलेंट ही परमानेंट सो पांचटा पॉइंट लिखिलो जे कोन कोन काहे कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नाही बोली आसुची देन way forward or suggest the measures कौन suggest करिवो you need to have an independent collegium system ओके जो थरे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिबे अपॉइंटमेंट कमिटी रे उठता बाहर कर दैछ सेकंड जिंस देयर शुड बी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एबे रिसेंटली कोन हला तमर मने थिबो जणे जो रिसेंट इलेक्शन पूर्वरु 2024 इलेक्शन पूर्वरु जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया थिले राजीव कुमार ना कि जण थिले ताऊ बाहर कर दिया गला माने सी रिजाइन दे देला ताको तरफ माने बड़ी प्रेशराइज करा हला आउ जणे इलेक्शन कमिशन हेले सो सेटा कहउची जे देयर शुड बी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो सो दैट से माने मेंटली फ्रीडम रे रही परिबे जे मो एठी काम करि परिबे एतिक दिन तापर देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर्स ओके जोटे अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया कोन सब रहइबो तापर दिनेश गोस्वामी कमिटी सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन लॉ कमिशन एमन सब कहिसंती जे वी नीड टू insulate the ECI from executive interference. And finally, institutional morality. Political actors and institutions must uphold the constitutional morality and restraint, respecting the spirit of federation, separation of power. माने समस्त निज निज स्पीयर भीतर रही काम करिया उचित चलो देन कंक्लूजन रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तार इंडिपेंडेंस अंडरस्कोर्स द फ्राजाइल बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी बुझिला सब बुझी पालो इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत अधिका इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया न्यूज रे अछंती कोन पय न्यूज रे अछंती काई सब बेले तम अपोजिशन क्रिटिसाइज करछंती कोन पय क्रिटिसाइज करछंती नाउ यू अंडरस्टूड कि ये इश्यू अछि पूरा सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रे अछि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया टा तार अपॉइंटमेंट तार स्टाफ्स तार फंडिंग मान ताको पैसा पत्र जहा भी दिया जाय पूरा गवर्नमेंट हाथ रे बुझला तो तापरे तमे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो भी जो एक्ट्स गुडा रहउची माने जेमती तमरो कोन एबे देखो गोटे रिसेंटली कोन अछि बिहार रे तो बिहार रे कोन होइची प्रशांत किशोर तांकर जोड़े वोटर आईडी कार्ड बाहरलानी
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି ବିହାରରେ। ତ now election commission of India is questioned कि how a person is having two voter ID cards at two different states. तो election commission of India is not vigilant about these things ना, जो आम कहले सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस रहू नहीं, तमें तार इंडिपेंडेंस ऊपर क्वेश्चन आसीबो, बुझिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन ना, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्लेज अ क्रुशियल रोल इन अपहोल्डिंग द पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी, yet concerns regarding impartiality have arisen। बहुत तरह क्वेश्चन पचारि regarding the impartiality of speaker। से कहूँ compare and contrast the role, powers and impartiality of speaker in India and UK, and what lessons from UK India can learn। तो यार इंट्रोडक्शन सिंपल जिनस, आग आइडेंटिफाई करिवो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को इंट्रोड्यूस करेबी। सेकंड जिनस पचारिछि जे तांकर गोटे बहुत ही क्रुशियल रोल रही, तो क्वेश्चन ने भी पचार देछि रोल, पावर और इम्पार्शियलिटी विषय। तो सेकंड जिनस हला हमकु रोल पावर विषय बुझेय पड़िबो आम इंडियन स्पीकर विषय। थर्ड जिनस होछि हमकु इंडिया और यूके को कंपेयर करियो पड़िबो, बुझला। तो स्पीकर को तमे करदेलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नो 93 रु 97 भितर हमर स्पीकर कर अछि प्रोविजन, एंड सी होचंती ही इज द गार्डियन, कोन ही इज द गार्डियन ऑफ लोकसभा। ओके, तो तांकर पावर्स जेंति हमर क्वेश्चन में मेंशन अछि, ही प्रिजाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग्स, he decides the disqualification of members of anti-defection law, he certifies the money bill, he represents the house in dealings and with the president and outside bodies, he refers bills to the parliamentary committees, he manages the house, suspends the disruptors, सस्पेंड कर ताको दायित्व सस्पेंड करिवा, मैनेज करिवा हाउस को। पावर 5-6टा लिखिलो। ओके, देन यू कम टू चैलेंजेस, माने कोन कोन इंडियन स्पीकर को चैलेंजेस रही। पार्टीशन परसेप्शन, माने हमर जो स्पीकर थांती जनरली सी गोटे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जे सेंट्रल गवर्नमेंट रे थांती। डिले और बायसेस इन एंटी डिफेक्शन रूलिंग, बहुत जगह रे कोन हैछि ना एमएलए माने चेंज करला पर भी एंटी डिफेक्शन लागू हेनी। सर्टिफिकेशन अब देखो जो हमर आधार बिल को जो आसीथिला एज अ मनी बिल, स्पीकर सेटा को डिसाइड कर देथिले ना जे आधार बिल टाक भी मनी बिल करके पास करे देले। Similarly, when you talk about the UK speaker, the speaker of the House of the Commons, तांकर जो पार्लियामेंट रहला सेटा सी जने नॉन पार्टीशन फिगर, माने से कोनोसी पार्टी रो नथि, आ जदी भी कोनोसी पार्टी रो थिबे he will resign from that party upon election, that speaker resigns from the party, बुझेला। does not participate in debate or vote except break ties, proceeding रे से किछि पार्टिसिपेट करंती नाही। तापरे he is protected from arbitrary removal, तांको मन इच्छा के हटै परिबे नाही, can be removed only by a vote of the entire house, and moral and institutional norms कि तांकर कन्वेंशन अछि जे तांकर जेंति सेटा से नॉन इंटरफियरेंस रहिबो तांकर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव विथ अ स्ट्रांग रेस्पेक्ट फॉर न्यूट्रलिटी। तो व्हाट आर द माने डिफरेंसेस तार कोन बुझिले जे गोटे होची पार्टी एफिलिएशन, इंडिया रे माने रूलिंग पार्टी से माने नॉन पार्टीसन। री इलेक्शन, दे आर कंटेस्टेड पॉलिटिकली। एबे देखो जो ओम बिरला अछंती तो तांको भी आउ थरे पुनी इलेक्शन लड़िया पड़िबो, बट ए माने दे आर वन स्पीकर हे गल माने से माननकु अनअपोज से माने री इलेक्ट हुअंती, तांके अपोज करंती नै। ताबरे हमर कोन होवे, हमर स्पीकर दे आर गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बट यांकर पूरा न्यूट्रल, बुझेला। एंटी डिफेक्शन रे ही डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, बट यूके रे देयर इज नो सच प्रोविजन। रिमूवल प्रोसेस आमर सिंपल मेजॉरिटी बाय लोकसभा, यांकर मोशन बाय द एंटायर हाउस, एंड इट इज वेरी रेयरली यूज्ड। सो आमे एई सब जिंस तांकर जहा जहा भलो गुण अछि आमे सिखि परिबा। जेमति हमर जे भी स्पीकर हेले, ही कैन आल्सो रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी। तापरे डिस्क्वालिफिकेशन तांकु न देकी वी कैन हैव अ ट्राइब्यूनल, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल, आ सुप्रीम कोर्ट मध्ये सजेस्ट करिछन ओके कि
किहोतो होलोहन केस रे दिनेश गोस्वामी कमिटी मते ये करछन्ती एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकर को द्वारा न करिकी गोटे ट्राइब्यूनल द्वारा कर तापरे अनअपोज्ड री इलेक्शन एटा मते करि हबो तापरे देयर मस्ट बी सम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द स्पीकर क्लियर एथिकल गाइडलाइन थिया दरकार केमिति सस्पेंड करि परिबो काहाकू सस्पेंड करि परिबो ई सब जिंस एंड फाइनली बाय स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी बुझिया तो सो द स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी এই कीवर्ड्स गुड़ा ना हाइलाइट करके लिख रख स्पीकर कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी पूरा तुम माने माइंड रे आसी जिया दरकार तुम आंसर रे निश्चित या ए कीवर्ड्स गुड़ा आसिया दरकार गवर्नेंस पॉलिटी रो क्वेश्चन रखुछ माने एई भली कीवर्ड्स तुम पाखे रहिबा दरकार आंसर रे ओके एटा हम माइंड को मन को आसीबनी एटा कोठु आसीबो आमे केतले मॉडल आंसर पढुथुबा नेट रे देखुथुबा से समय आसीबो आ ताकू सेमति छाडी दबनी ताकू खातार लिखिदब स्पीकर आसला माने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बा पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी बा इज द गार्डियन ऑफ द लोकसभा एटा सब लिखियो पड़िबो बुझिला नॉन पार्टिसनशिप लिखियो पड़िबो वर्ड सुडा बुझिला तो ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आदि कर्मयोगी एटा भी बहुत अधिका न्यूज रे अछि ए हमर ए जो टेस्ट थिला कंप्लीटली न्यूज बेस्ड थिला माने न्यूज को हमें लिंक करछे स्टैटिक सहित आ ताकू बनेकी फ्रेम करछे क्वेश्चन सो जे तमे करंट अफेयर पढु ना हो ताहले तमे आंसर करि परिबो सो हमहु करंट अफेयर भी देखिया पड़िबो ओके एबे एग्जाम रे सेही भली ही क्वेश्चन आसिलानी जे करंट जिंस को स्टैटिक सहित लिंक करी से माने पचारिबे आ से पुराना कालिया जो थिला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी ई सब क्वेश्चन आ पढुनी ओके एबे देखो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केते न्यूज रे अछि ओके तापर देखो से कहिछि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी एंड आउटकम्स ऑफ आदि कर्मयोगी अभियान इन ओडिशा हाइलाइटिंग द स्टेट्स रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस तो एटा क्लियरली क्वेश्चन डिफाइन हे जाय तुमको एठी खोजियार नाही कोन कोन म आंसर करिवि आदि कर्मयोगी को डिफाइन करिवो इंट्रोडक्शन रे तार ऑब्जेक्टिव लिखिवो इंट्रोडक्शन लिखिवो इम्प्लीमेंटेशन लिखिवो जे तार फीचर्स कोन कोन अछि एंड तार आउटकम्स लिखिवो ओके सेतरे ओडिसा कोन किबळी परफॉर्म करछि से आउटकम रे इंट्रोड्यूस हबो तमरो ओडिसा रा कोन कोन अचीवमेंट रहिछि तो एटा जदि तमे जानि न लिखि परिबो तो आदि कर्मयोगी अभियान गोटे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गोटे ये फ्लैगशिप स्कीम ओके तो जो थे हमर मेनली कौन करा जाउची ना तार ऑब्जेक्टिव कौन कौन रही ना बिल्डिंग अ कार्डर ऑफ चेंज लीडर्स जोठी की टू ट्रेन एंड मोबिलाइज अ नेटवर्क ऑफ 20 लाख चेंज लीडर्स अक्रॉस द नेशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो मानक आदि कर्मयोगी कहबा ट्राइबल प्रोफेशनल को जदि आम इम्प्रूव करवा आदि सहयोगी कहबा एंड लोकल कम्युनिटी स्टेक होल्डर को इम्प्रूव करेले आदि साथी कहबा तो जो आम चेंज लीडर्स कथा कहले तो क्या तो आंसर रे की रहा दरकार तुम आदि कर्मयोगी आदि सहयोगी और आदि साथी तीन टा तुम आंसर रही आउ कौन अच्छी तार ऑब्जेक्टिव प्रोमोटिव रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस ओके तो कौन हम ना टू ब्रिज द सर्विस डिलीवरी इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन लाइवलीहुड बाय प्रमोटिंग द कौन saturation of government schemes participatory planning the to facilitate the co-creation of tribal village vision 2030 यार गोटे एटा प्लान कराई ट्राइबल विलेज विजन 2030 जोठी की ट्राइबल एरियाज को डेवलप करा एंड फाइनली तांकर कल्चर को हमें प्रिजर्व भी करिया पड़िबो माने जो इंडिजिनस आइडेंटिटी और इंडिजिनस विजडम अछि हमें ताको प्रिजर्व करिया सहित डेवलप करिया पड़िबो एउडा होची तार ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ओके तो चारटा पॉइंट ऑब्जेक्टिव लिखिलो then you need to write implementation strategy how these things would be implemented second question हमर अछि गवर्नमेंट रो कोन करा जीवो ना गवर्नेंस लैब वर्कशॉप there will be regional labs district level labs okay जोठी की कोन हबो कोन these labs will focus on convergence of schemes in tribal context and will ensure participatory planning
ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ଯୋଉଠି ତମର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ରହିବେ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବୁଝେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସ୍କିମ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଇନକ୍ଲୁସିଭ କରିପାରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ନେଇପାରିବା, ସରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବା, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ। ଓକେ, ଆଉ ତାର ତିନିଟା ପିଲାର ଏଟା ତ କହିଲେ ଏବେ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ, ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କୁ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଆଦି ସହଯୋଗୀ, ଟ୍ରାଇବାଲ ୟୁଥ୍, ଟ୍ରାଇବାଲ ଟିଚର, ଟ୍ରାଇବାଲ ଡକ୍ଟର, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର କରାଯିବ। ଫାଇନାଲି ଆଦି ସାଥୀ, ଲୋକାଲ ଲିଡର, ଏସଏଚଜି ମେମ୍ବର, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋବିଲାଇଜ କରାଯିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ଆଦି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଟ୍ରାଇବାଲ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଟ୍ରାଇବାଲ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡମିନେଟେଡ୍ ଏରିଆଜରେ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଠି ଆସି ରିଜଲ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରାଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କରାଯିବ, ଯୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଠିକି ଦିଆଯିବ। ଡେଟା ଡ୍ରିଭେନ୍ ଟୁଲ୍ସ ରହିବ ସେଠି, ମନିଟରିଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ରହିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଣ ଆଉଟକମ୍ ରହିଲା ଏଇ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀରେ? ଓଡ଼ିଶା ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଟ୍ ୱାଜ ଆଡଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଉ ଯୋଉଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଲା ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 5500 ଭିଲେଜ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଆମର ଭିଲେଜ ଭିଜନ 2030 ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଭିଲେଜ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ 5500 ଟ୍ରାଇବାଲ ଭିଲେଜ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜ, ଯୋଉ ଆମର ଆଦି ସାଥୀ ଖୋଜା ହଉଛି, ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ମାଝୀ ଫ୍ରମ କଳାହାଣ୍ଡି, ହି ୱାଜ ଫେଲିସିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଦି ସାଥୀ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଟା ବି ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲିଡରशिप ଡେଭଲପमेंट ପାଇଁ କି। एंड फाइनाली ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଟୁ ଏନଶ୍योर 100% ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ସो ଏଇଠି ତମକୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ क्वेश्चन ଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଟା ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିବ, ପ୍ରଥମତଃ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାର କଣ ଫିଚର୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ରେକଗ୍ନିସନ ପାଇଛେ, ତ କଣ ତାର ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା। ପିସା ଆକ୍ଟ 1996, ସେ କହୁଛି what is PISA Act 1996 and explain the how its implementation in Odisha has helped strengthening tribal governance and local decision making। ତ ପିସା ଆକ୍ଟ କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ଆଗ। ପିସା ଆକ୍ଟ କଣ? Provisions of the Panchayat Extension to Schedule Area Act 1996। ତ ଆମର ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆଜ ଅଛି ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚେଇବା, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇପାରିବନି, କିଛି ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ଶିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଫ୍ଥ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠି କି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଆମେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟିକେ ବେଶୀ ରିଜର୍ଭେସନ ଦବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ରୁଲ୍ସ ବନେଇବା। ତ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡମିନେଟେଡ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ କି ପିସା ଆକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସେଠି ଲଗାଯିବ। ସୋ ୟାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୱିଦିନ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ତ ପିସା ଆକ୍ଟ କହିଲ ମାନେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଲ ପିସା ଆକ୍ଟ ର ମିନିଂ କଣ, ଦେନ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ, କଣ କଣ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ it is designed to protect the tribal, ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ସୋ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, କଲଚର ଆଉ ରାଇଟ୍ସ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯିବ by making ଗ୍ରାମ ସଭା the nucleus of all activities and decision making। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ଫିଫ୍ଥ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଯାହା ବି କାମ କରାଯିବ ଏ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଡିସିସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତ କଣ କଣ କରାଯିବ? ଗୋଟେ ହଉଛି କଷ୍ଟମାରୀ ଲ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ତମର ଯାହା ବି ଲୋକାଲ କଷ୍ଟମ ଅଛି, ଲୋକାଲ କଲଚର ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେମିତି କଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଓନରशिप ଅଫ ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ, ୱାଟର ବଡିଜ, ତାକୁ କିଭଳି ମ୍ୟାନେଜ କରାଯିବ ସିଏ ବି ଗ୍ରାମ ସଭା କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ, କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି, ପୋକ୍ସୋ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏବେ ଆଦାନୀ
ର बहुत सारा प्रोजेक्ट चलियो बोली अछि ସେଥିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍विଜିସନ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରାମ ସଭା କରିବ सोशल सेक्टर कंट्रोल माने कंट्रोल ओवर लोकल मार्केट मेला पावर टू रेगुलेट एंड एनफोर्स प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्ट सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स माने रिसेंट तम मार्केट फार्केट रे किभଳି भाबरे सिस्टम करा दियो माने धरो तमरो गोटे ट्राइबल कल्चर अछि ट्राइबल फेस्टिवल अछि से माने धरो नॉन वेज बैन कर देबे ओके बा जहां भी तांगर रूल्स थियो सेडा सब ग्राम सभा करिवे एंड फाइनली डेवलपमेंटल प्लानिंग जहां भी तमरो ये अछि ओके डेवलपमेंटल प्लानिंग्स अछि तमरो रास्ता बना जिवो घर बना जिवो एडा सब तापर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन एंड फाइनली एसटी रिजर्वेशन रहियो सो दीज आर द ब्रॉडर फीचर्स ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एरिया रे ग्राम सभार रोल्स कोन कोन अछि देन हमर जो नेक्स्ट पार्ट अछि क्वेश्चन रे पिसार इम्प्लीमेंटेशन किभଳି ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को ओडिसा रे इंप्रूव करा अछि कोन कोन करूछि से डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करूछि ओके तो naturally people are participating direct participation possible ହେଇ पारुछि through पल्ली सभा एंड ग्राम सभा दे आर माने जहां ଆମେ पढ़िले जहां तार प्रोविजंस अछि ग्राम सभार सेଗୁଡା ହଉଛି ଆଉ କଣ ସେଗୁଡା ଲେଖିବ control they are having the control over resources minerals they are maintaining their cultural they are maintaining their traditional autonomy okay accountability ଆଉ transparency ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି ତ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଇଥିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯାହାକୁ ଦେଇଥିବେ ମାନେ କଣ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କି ଘର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ପଲିଟିକାଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ସେଠି ରିଜର୍ଭେସନ ବି ଏସଟି ପାଇଁ ଅଛି ମିନିମମ୍ 50% ବୁଝିଲ ତ ବଟମ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି ଓକେ ବଟମ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ ତ ଇଟ ଏନସିଓର୍ସ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ओके एनश्योर्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी एटा लिखिबो आपण तो हाउ इट इज प्रमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस 6टा पॉइंट रे गोटे गोटे लाइन लिखा हबो it ensures decentralized decision making by the instruments like policy and gram sabha ए सब जिन लिखा किसी आवश्यकता नहीं they are having control over resources like allocation of land for developmental project granting license for minor minerals preserving the cultural and traditional autonomy दी लाइन रे अरे समस्त बुझी पारछो कि नहीं जो माने सब बड़ बड़ लिखुछ जहाँ सब कॉपी रे मु लिखिछि ये सर नो कुह ले बुझी पारछो कि नहीं ना मु खाली कहूची खाली शुणुच हम्म Yes, sir. Yes, sir. ये सब जिनस ना मॉडल आंसर जेतिकी दिया है तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं आंसर गोटे लाइन ने रहियो मात्र देखो तमे एडा सब टॉपर्स मान कॉपी देखो कौन अछि गोटी गोटी लाइन ने आंसर अछि तमे जो जहां कॉपी देखियो ओनली वन लाइन गोटी सेंटेंस दैट्स इट ओके नहले केबे भी कॉपी कंप्लीट हबन न पेपर कंप्लीट हबो नाही तो जो माने लिखुच कंप्लीट भी करूच यू नो कि तमे एक्चुअली आंसर पेपर टाइम रे कंप्लीट करि पारुछ ना टाइम एक्सटेंड करूची ओके निजर कॉपी ओपन कर कि देख मु कोठी भूल कर देली को जिनसटा हेतिले मोर देख स्वागती गाइड लिखिछन देखो अपॉइंटमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड अदर पूरा गोटी लाइन रे रहियो एटा किछि एते जिंस लिखिया दरकार नै डोंट नीड टू एक्सप्लेन बुझिला एटी कौन लिखिछ लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर एंड कैन नॉट डी रजिस्टर ए पार्टी फॉर सीरियस वायलेशन लिमिटिंग इट्स अथॉरिटी ओके तो गोटे लाइन लेख ए गुड़ा क्या लिखुच ताले गोटे लाइन लेख लिमिटेड एनफोर्समेंट माने जहाँ भी लिखुच जे लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर ओके
पॉलिटिकल पार्टी को भी पूरा पॉलिटिकल लिखिया दरकार नहीं, पॉल लिखिदेले भी जानिबे। डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखिया पे डीपीएसपी लिखिबो, फंडामेंटल राइट को एफआईआर लिखिबो, बुझियला। सर एक्चुअली ऑप्शनल माने आंसर राइटिंग जो करूथिली सर सेइडा मु टिके माने जीएस के भी करनथिली तो सर सेइथिन से टिके माने अधिक अधिक हो जाई सर एटा। हाँ तो नेक्स्ट टेस्ट रो ट्राई करो जे जेमती माने मु जो जिनसटा कहूची सेटा एन्श्योर करो ना। आगे सर। तो नहले कोन हो कॉपी कंप्लीट हो ऑप्शनल रे ठीक अछि, ऑप्शनल रे दिस इज गुड बट एठी एमती है ना। तापर हमर कोन अछि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियास इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो कहिछि यार की प्रोविजंस रोल इन एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड चैलेंजेस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कोन ताकू एक्सप्लेन करो 2-3 लाइन रे। ओके मु जेमती कहूची समस्त माइंड रे रखुथाओ, एटा जदि स्टार्ट करूछ माने एठू एतिकी भितरे तमर इंट्रोडक्शन रहिया दरकार, या टू बियॉन्ड जेंति न जीवो मेंटली तमे रेडी रहो, नहल नाही छाड़िबो क्वेश्चन 100%। तो तापर हमें लिखिबा की प्रोविजंस कोन आरपीए रो कंडक्ट इलेक्शंस प्रथम जिंस। ओके तो ए जिंस न लगे कि डायरेक्टली लिखिबो कोन की प्रोविजंस एम्पावर्ड ईसीआई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लिखे दरकार नहीं, डायरेक्टली लिखिबो ईसीआई। ओके टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, दैट्स इट। तापरे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ओके तो सेकंड पॉइंट कोन लिखिबो एंश्योर्स क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, ओके डिफेक्शन ऑफेंसेस, दी तीनटा एग्जांपल, दैट्स इट। तापरे करप्ट प्रैक्टिसेस कोन कोथि जोगुर डिस्क्वालिफिकेशन हे पेरो, ब्राइबेरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपील्स ऑन कास्ट और रिलीजन, ए सब जिंस रे मध्य बूथ कैप्चरिंग, एक्सीडिंग एक्सपेंडिचर लिमिट एगुडी कर द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन हे परिबो। दु तीनटा एग्जांपल ले बुझे देलो। तापरे it establishes the high courts to hear petitions, election petitions, ensures that judicial scrutiny hobo electoral process ro, so it also has a election dispute redressal mechanism गोटे लाइन रे बुझेला। तापरे बाय इलेक्शंस एंड वैकेंसी, तो बाय इलेक्शन भी करा होची इलेक्शन द्वारा माने इलेक्शन जो आरपीए रो प्रोविजन अछि बाय इलेक्शन रो करा जीवो सेटा भी लिखिबो। तापरे हमर जो लास्ट अछि फ्री एंड फेयर इलेक्शन रे यार रोल कौन रोची। सो it is the legal backbone of electoral integrity. It prevents criminalization and corruption. It promotes equality and fairness. It ensures judicial oversight and empowers election commission of India. And finally challenges criminalization of politics. Okay तो सेटा को हमको एंश्योर करियो पड़ियो जे क्रिमिनलाइजेशन केमिति न हुए, जदि किछि डेटा अछि मेंशन करि परिबो। मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, डिलेज इन इलेक्शन पिटिशंस, एगुडा किछि लिखिबोनी केवल हेडिंग बुझि परछो रिलीजियस एंड कास्ट अपील्स। ओके तापरे एग्जांपल दे दबो जदि तम पाखरे किछि रिलीजियस अपील्स अछि, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, रिलीजियस अपील बुझला, किबा जो कास्ट लाइन रे भी जो ये करा होछि। ओके तापरे लैक ऑफ रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके कारण जो पॉलिटिकल पार्टी रे इंटरनल डेमोक्रेसी नाही तो तांको मध्ये हमें अलाउ करू छी। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड देन, जहा प्रॉब्लम तमे आइडेंटिफाई करलो ताको किबळी सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड रे जहा प्रॉब्लम तमे आइडेंटिफाई करलो, सपोज गोटे प्रॉब्लम ले लिखि जो सॉरी एटा चैलेंजेस लिखि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो सॉल्यूशन कोन दबो को वे फॉरवर्ड कोन लिखिबो। कौन लिखिबो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ना। ओके नीड टू एंश्योर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, comprehensive reforms regarding political funding, greater in autonomy to election commission of India। एबे तो एते पड़ी पड़ी आसी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया में ऑटोनॉमी नहीं लिखि दबो। तापरे
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर इलेक्शन ऑफेंसेस बुझिला तो सो 4-5टा पॉइंट लिख लो एंड फाइनली यू नीड टू कंक्लूड कि this despite of all the challenges it remains the cornerstone of India's electoral democracy giving concrete form to constitutional ideals of free and fair elections तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करिया पे आरपीए रो रोल बहुत अधिक अछि तो बुझी पारलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट एंड तमरो लास्ट ईयर मध्ये एग्जाम रे पढिथिला आमे तार प्रोविजंस जानिया पड़िबो तार इश्यूज जानिया पड़िबो एडा सब जिंस आमे कवर करि नेले बुझियला then RTI another very important question से कौन क्वेश्चन पचारछि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर the pillars of good governance examine the role of RTI Act 2005 in promoting these principles in India किभଳି RTI Act किभଳି RTI Act कौन करूछि ना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करूछि सेटा होछि क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन तबे जानि गलो कोन करियार अछि नीड टू डिफाइन आरटीआई राइट टू इनफॉरमेशन कोन केबे आसिला तापरे हाउ इट इज प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सेकंड पार्ट बा बॉडी रो फर्स्ट पार्ट जोटा हम कहूचे देन व्हाट आर द चैलेंजेस एंड फाइनली व्हाट आर द वे फॉरवर्ड बहुत इजीली डिफाइन है क्वेश्चन किछि नै एतर बुझिया पे किछि प्रॉब्लम नै बॉडी रे कोन कोन रहिबो तो व्हाट आर द रोल केमिति प्रमोट करूची ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट इनसाइट empowers the citizens okay to demand to question government decisions and demand records and expose maladministration it helps in curbing the corruption and misuse of power example भी देई परिबो जे हमर आदर्श हाउसिंग स्कैम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम एडा सब आरटीआई द्वारा ही हमर रिवील होची promoting it promotes transparency in public spending okay suomoto डिस्क्लोजर करा जिवो ओके प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जोटा कहंती बाय जो इन्फॉर्मेशन होगा एंड फाइनली strengthening the accountability mechanism there are public information officers information commissions जो माने कि आरटीआई पाई ही बना है जी तो मु लोगों को गवर्नमेंट रो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिया पे एंड फाइनली इट एम्पावर्स द मीडिया एंड सिविल सोसाइटी so RTI has become a crucial tool for investigative journalism and grassroots activism ओके ए वर्ड उडा हाइलाइट करके रख पेपर रे लिखि रख तमरो कॉपी रे एडा आंसर करिवो देन व्हाट आर द चैलेंजेस इट डाइल्यूट्स द इंडिपेंडेंस तो जो गवर्नमेंट रो किछि इंडिपेंडेंस रहिया दरकार dilution of independence so RTI gave the government control over the tenure and salary of the information commissioners तो तांको सैलरी ऊपर टेन्योर ऊपर गवर्नमेंट जेतल चाहे बाहर कर दबो गवर्नमेंट जति चाहे सैलरी दबो तो तांकर इंडिपेंडेंस डाइल्यूट हो गला देन जो हमर सेक्शन 4 अछि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करिवे एटा पब्लिक स्पेंडिंग केते हला रास्ता टे तयारी हला केते टका खर्च हला आरटीआई एक्ट कहूची प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर हवा दरकार तम माने गवर्नमेंट तरफ रु सेटा जणैया दरकार बट मेनी पब्लिक अथॉरिटीज फेल टू proactively disclose the information then backlog huge vacancy RTI रो 3 लाख रो अधिका केसेस पेंडिंग हे पड़ी इंटिमिडेशन ऑफ RTI एक्टिविस्ट तो जेमती हमरा बहुत सारा सतीश शेट्टी शेहला मसूद एमती बहुत सारा RTI एक्टिविस्ट मानन को माने तांको ऊपर अटैक हेची तांको मर्डर हेची एंड फाइनली लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत लोग जानि भी नांती RTI केमिति फाइल करिवु कोन तार प्रोसेस रहिची यार प्रोसेस को मध्ये आउरी इजी करा जाय परिबो जेमती गोटे सिंगल विंडो पोर्टाल करा जाय परिबो जेमती गोटे प्रोफॉर्मा गवर्नमेंट रु दिया जाय परिबो जे एई प्रोफॉर्मा रे तमे फिल करके खाली एप्लीकेशन टा सेही पोर्टाल ले अपलोड कर देले RTI फाइलिंग हे गला बोली जाना पड़ियो बहुत इजी करा जाय परिबो थिंग्स आर नॉट सो इजी तापर डिजिटल डिवाइड सो ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी भी बहुत जगह नाही जेमती RTI पोर्टाल को फाइंड करिया पे बुझे बा गवर्नमेंट रो भी कोनोसी सेमती गवर्नमेंट तरफ रु भी किछि ये नाही एफर्ट्स नाही तो हाउ टू ये तापरे
सो वे फॉरवर्ड रहबो जहां हमें इश्यूज देखिले जेंति हमें देखिले कोन डिजिटल कनेक्टिविटी नाही तो हमको डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाइबो पड़िबो अवेयरनेस नाही अवेयरनेस कैंपेन करो जो माने एक्टिविस्ट अछन तांको पर अटैक होउची तो नाउ वी नीड टू हैव व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ता द्वारा हमें तांको प्रोटेक्ट करि परिबा सेक्शन 4 सेटा प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अछि एटा को मैंडेटरी करो से माने करू ना सो यू नीड टू डू इट मैंडेटरी डिस्क्लोजर आ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कोन अछि तांको हमर ऑटोनॉमी आमे तांको इंडिपेंडेंस तार हटेले सो हमको तार सॉल्यूशन कोन तांको टेन्योर दियो इट ऑटोनॉमी दियो बुझिला एंड फाइनली ताको लिखिबो जे so it deepens the democracy by ensuring the transparency accountability and citizens participation अरे बुझी पारलो कि नहीं क्वेश्चन और हाउ टू आंसर ना कोन डाउट रहला देन मु एटा गोटे कहिथिली आज एटा बढ़िया जिनसटा सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशन एटा तमर टोटल 70 पेज रो अछि याको मोबाइल रे हो जोथरे हो रखि दबो ओके तो सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशन टोटल 10 टा चैप्टर ऊपरे बा 10 टा टॉपिक ऊपरे बहुत सारा रिकमेंडेशन देइछथि फर्स्ट चैप्टर होची आरटीआई सेकेंड होची एथिक्स इन गवर्नेंस थर्ड होची स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन ई गवर्नेंस क्राइसिस मैनेजमेंट टेररिज्म लोकल गवर्नेंस स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ऑर्डर ए बळे 10 टा जिंस ऊपर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन बहुत सारा सजेशन देइछन तो एटा गोटे तार जिस्ट ए जो एटा अछि जार गोटे जिस्ट कोन कोन सजेशन देइछन आ ए सब जिंस हमर सिलेबस रे अछि एवरीथिंग इज इन सिलेबस तो पूरा पढ़िया दरकार नहीं किछि किछि सजेशंस रिगार्डिंग ईच चैप्टर चारि पांचटा सजेशन रिगार्डिंग ईच चैप्टर तमे एटा को पढ़ी की गोटे सेपरेट दीटा पेपर दीटा पेज रे बनै दो ओके प्रति दिन ने 2 दिन धरि धरो आरटीआई फास्ट देखो 3 रु 9 6 पेज अछि 6 पेज रे गोटे जिस्ट देछि आरटीआई विषय तमे हेतु 4 5टा पॉइंट नै की ताको गोटे पेज रे बनै दियो 4 5टा पॉइंट हैला तो देखो कोन देछि फॉर एग्जांपल देखो सेकेंड एआरसी कोन कहछन्ती आरटीआई इज अ मास्टर की टू गुड गवर्नेंस तमे जतरा आंसर करिवो आरटीआई विषय रे सेडी लिखि परिवो कि नहीं जे अकॉर्डिंग टू सेकेंड एआरसी आरटीआई इज अ मास्टर की टू गुड गवर्नेंस कोठी लिखिवो एटा को बहुत जगह लिखि परिवो तमे इंट्रोडक्शन ने भी लिखि परिवो कंक्लूजन ने भी लिखि परिवो ओके तो कोठी लिखिवो तमे निजे डिसाइड करो कंक्लूजन ने लिखि परिवो जोठी भी लिखि परिवो बुझियला ओके तो ये आउ कौन कौन देछि देखो it strengthens participatory democracy and people centered governance बुझला तो ये गुडी को तमे जो कीवर्ड्स गुडा जोडा का हमर सेकंड एआरसी कहि चंती तमे गोटे पेपर रे लिखि लिखि दियो बुझला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट विषय कहि चंती ठीक अछि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट न करो ए डिके हेवी जियो बट ये गुडा को ओके तापरे देखो एटी देखो लिखा है कौन सुओमोटो डिस्क्लोजर should also be available in the form of printed priced publication in official language it must be revised periodically लिखा है कि ना सेकंड ईयर सी रिकॉर्ड जो रेकमेंड करछंती तो ए सब जिंस न लई तमे जो नोट्स बनेइबो सेठी खाली लिखि दबो सेकंड ईयर सी कोन आगु रेकमेंड करछंती सुओमोटो डिस्क्लोजर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स बुझियला तो
आउ कौन कहते पब्लिक रेकर्ड ऑफिस एस्टाब्लिश हवा दरकार बुझेला जोटा कि गोटे इट विल बी अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रेकॉर्ड्स माने पब्लिक रेकॉर्ड मैनेज करबे गोटे ऑफिस क्रिएट हवा दरकार एटा भी कहछन ओके कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन देखो एट जो आमे पढिले मॉडल आंसर रे आमे पढिले जे अवेयरनेस नाही लोक मानक पाखरे आरटीआई विषय तो एठी तमे अकॉर्डिंग टू सेकंड ईयर से रिकमेंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स should be there for PIOs माने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो माने अछंती they should be well trained कि आरटीआई केमिति तमे रिप्लाई करिवो बुझिला तापर आ कोन हो दरकार बहुत सारा रिकमेंडेशन देइछन जोटा तुमको सुइटेबल लागुची मु कहूनी एटा पर्टिकुलर रखो कोटा पर्टिकुलर रखो ओके बट किछि किछि तमे एथुरु नेकी निजर गोटे 2 पेज रे नोट्स रे बनाओ पूरा सब पय 2 पेज भितरे बनि जिवो 2 अढाई पेज भितरे बा 3 पेज रे बनि जिवो ताकू कोन करिवो बारंबार घोषिवो घोषिवो पढिवो बारंबार प्रैक्टिस करिवो एग्जाम रे आंसर लिखिला बेले खाली सेथुरु पकेइवो सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड ईयर से रिकमेंडेशन आरटीआई रिगार्डिंग देले एटा पब्लिक रेकॉर्ड ऑफिस गोटे हवा दरकार बुझिला तो सिंगल विंडो कहछंती एप्लीकेशन टू नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज तो ये देखो ये आउ गोटे भी लिखिपर देख मॉडल आंसर रे चैलेंजेस रे कौन लिखिपर जे आरटीआई वर्तमान बहुत सारा एनजीओ इंडिया रे काम करुछंती जोटा पब्लिक अंडर रे बट एनजीओ को एप्लीकेबल नुहे आरटीआई हला एटा गोटे बहुत बड़ इश्यू आमे धर एनजीओ विषय काम जिंस जानिया पे चाहछंती तो आमे केम जानिबा पब्लिक केम जानिबे देयर इज नो प्रोविजन कारण आरटीआई लागू होनी सो एटी देखो सेकंड एआरसी ताको आइडेंटिफाई करले आ से लिखिले जे जो एनजीओ गुडी को आर नेचर ऑफ पब्लिक नेचर आ जोड़ा कि माने गवर्नमेंट सहित मिसी काम करूछंती आरटीआई तांको प्रति लागू होबा दरकार बुझियला टाइम लिमिट फॉर इंफॉर्मेशन केते दिन भीतर ये करिवो आमेंड सिविल सर्विस जहां भी तुमको ठीक लागिवो ओके जोड़ा भी तुमको ठीक लागिवो तापर नेक्स्ट चैप्टर होची कोन एथिक्स इन गवर्नेंस चैप्टर 2 ओके एथिक्स ऑन गवर्नेंस तमर अछि पूरा पूरा एथिक्स चैप्टर ही एथिक्स ऊपर अछि तो पूरा एथुरु सजे की गोटे पेज रो नोट्स बनेबो कोन कोन सेकंड ईयर से रिकमेंड करचंदी ताकू खाली आंसर रे तमर खाली पुट करिवो बुझियला समस्त बुझी पारलो ए डॉक्यूमेंट को केमिति यूज करियार अछि 70 पेज रो डॉक्यूमेंट अछि देखिले बड़ लागिवो बट डू इट चैप्टर वाइज तमे आरटीआई कलो गोटे दिन बसी आरटीआई रो बनै दियो 8-10टा पॉइंट कोन कोन मु आरटीआई रे मेजर रिकमेंडेशन अछि ताकू केमिति कोन यूज करि परिबी एथिक्स इन गवर्नेंस तापर आ गोटे दिन धरो एथिक्स इन गवर्नेंस सी देखो केते पेज 9 रु 17 8 पेज रो अछि 2 दिन 3 दिन धरो एथिक्स इन गवर्नेंस पढि दियो पूरा डॉक्यूमेंट टा 7-8टा पॉइंट बनै दियो केते 7-8 पेज केते समय लागियो पढिया पे जी संगे संगे चाहिले भी पढि परिबो किछि असुविधा नै तो समस्त करिवो तो ना करिवोनी आज्ञा सर सेकंड ईयर से रिकमेंडेशन यस सर ठीक अछि समस्त ट्राई करो गोटे शीट दुईटा A4 साइज पेपर रे चैप्टर वाइज पढ़ी कि कोन कोन रिकमेंडेशन देइछंती ताकू तुमको जोटा भल लागो जोटा लागुच एग्जाम वर्दी अछि जोटा एग्जाम पे भल मेंशन करिनियो लिखि दियो ताकू बार बार पढ़िबार अछि हम ताकू पुट करियार अछि हम आंसर ठीक अछि तो बाकी आउ दीटा क्वेश्चन रहिला हमें नेक्स्ट क्लास से करबा ओके आउ आ गोटे क्लास नबा ताकू कवर करनबा नेक्स्ट क्लास रे ओके आज पे एति की कार किसी डाउट अछि किसी डाउट अछि ना रैप अप करिया हां ठीक अछि गुड नाइट